अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना हंजरवाल की हदूद में दो सगे भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। एक की उम्र सिर्फ 19 साल और दूसरे की उम्र सिर्फ 16 साल होती है। ऐसा क्या गुनाह होता है कि उनको बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है? कत्ल की वजह क्या है? कत्ल होता क्यों है? कैसे मुलजमान पकड़े जाते हैं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। ਵੱਡਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਬੇਟੇ ਸੀ, 2 ਹੀ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਗਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਨ? 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੀ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, तेरे प्यो मार देंगे अगर तुम मेरे नाल निकाह नहीं किया। हंजरवाल के इलाके में कुछ अर्सा पहले एक दोहरे कत्ल की वारदात होती है। दोहरा कत्ल क्या होता है कि दो सगे भाइयों को, जिनमें एक की उम्र 19 साल और एक की उम्र 16 साल होती है, उनको अपने घर की दहलीज पर जो दुकान थी जहाँ पे वो अपना कारोबार करते थे, कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वारदात होती किस तरह से है और कत्ल करने वाला कौन है? मकतूल जो दोनों सगे भाई थे, उनका वालिद जो इस गम से, इस दुख से निढाल है, वो हमारे साथ है। दादी हैं, वो इस वक्त मकतूल जो बच्चे थे उनकी दादी भी इस वक्त मौजूद हैं। एक रिश्तेदार हैं, वो भी मौजूद हैं। सर अपना नाम दसो तो ये दसो कि की होया? सर मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। मोहम्मद अली साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਸਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ 16-17 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨਸੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਹੀਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਰ? ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜੇ 9ਵੀਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ। ਉਹ 9th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਵੱਡਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸੀ, 2 ਹੀ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਗਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਨ? 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੀ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਉਹ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਾਚਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਸਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ? ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ? ਇਹ ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਲਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਾਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਜਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾਲ? ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣਾ? ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਗੜਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਓ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਸਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਅਸਰ ਬੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਫਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ 1-2 ਬਿਆਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ID ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸੀਨੇ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ क़यामत ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਰੇਬਾਨ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ नहीं सुनी। ये वो दुख भरी दास्तान है जिसमें मुकदमे के मुद्दई हैं और दोनों मकतूल जो बच्चे थे उनके वालिद भी हैं। इनका कहना ये है कि 2 बच्चे इनका काम काज भी करते थे, हाथ भी बटाते थे कारोबार में, और कत्ल करने वाला जो शख्स था उसने पहले इनकी बेटी के साथ धमका के, डरा के, उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी की। और जब मुकदमा दर्ज करवाया गया, FIR दर्ज करवाई गई बच्ची की अगवा की, तो फिर वो निकाहनामा सामने ले आता है और वो मुकदमा पुलिस खारिज कर देती है। यकीनन जब लड़का और लड़की एक निकाह कर लेते हैं और निकाहनामा पेश कर देते हैं तो पुलिस को फिर ये मुकदमा खारिज करना पड़ता है। ज़ात बरादरी और एक पंचायत के ज़रिए बच्ची को अपने वालिदैन के घर लाया जाता है। जब वो बच्ची अपने वालिदैन के घर आ जाती है और वो बताती है कि उसको किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, किस तरह से उसको डराया और धमकाया जा रहा था, तो वो मजबूरी की वजह से कि उसके भाइयों को ही कत्ल कर देगा जो उसके साथ निकाह करने वाला और आज का मुलजिम है, तो वो डर खौफ की वजह से उसके साथ निकाह कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब वो घर आती है, घर वालों को सब कुछ पता चलता है, तो फिर ये उसके साथ ताल्लुक़ रखने को जो है वो तैयार नहीं होते हैं। अदालत के ज़रिए खुला हासिल कर लिया जाता है, खुला मिल जाता है, तलाक हो जाती है, लेकिन मुलजिम फिर भी बज़िद होता है कि वो उस लड़की को यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन खुला के बाद यकीनन उसका कोई शरई और कानूनी हक़ नहीं रह जाता, फिर भी वो उसको ब्लैकमेल करता है, इनको थ्रेट करता है, धमकियों वाले मोबाइल पर मैसेज करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है। तो फिर क्या होता है कि दोनों भाई अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसके मुताबिक दुकान पे काम कर रहे होते हैं। मुलजिम एक मोटरसाइकिल सवार के साथ आता है जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसकी मदद से पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी किया है, एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। गोलियां मारता है मुलजिम और मौके से फ़रार हो जाता है। साथ वाली दुकान पे ये भी मौजूद होते हैं, उनकी दादी भी मौजूद होती है, लेकिन मुलजिम फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वही पुलिस का एक रवायती जो तरीका होता है कि किसी बाअसर शख्सियत के ज़रिए वो मुलजिम पुलिस के सामने पेश हो जाता है, लेकिन जो उसका साथी था, जो उसका सूरतकार था, जो उसका मददगार था, जो मोटरसाइकिल चला कर वहाँ पर आता है, शरीके जुर्म उसका होता है, वो पुलिस अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर पाती है। उसके हवाले से भी ये पता चलता है कि मुलजिम ये भी बताता है कत्ल की वारदात करने के बाद कि वो अपने साथी को पहले किसी सेफ जगह पे, किसी मुनासिब जगह पे छोड़कर तो फिर पुलिस के पास पेश होगा। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि पुलिस कितनी कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरे मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लेती है। ये कहानी थी कि कत्ल की वजह क्या बनी।
एक उसके साथ मोटरसाइकिल लेके स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, वो बैठ के पीछे भाग गया। मेरे बच्चे मैंने देखे तो बच्चे मेरे खत्म कर दिए उसने। बड़े बच्चे का भी जहाँ पैर लगा है वो मैंने इतने में मुझे पता भी नहीं, छोटा मेरा खुले में पड़ा, वो गिर गया, उसका सिर भी फट गया, उसकी ये गर्दन भी टूट गई। हाय 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 हाय, ये मंजर बहुत खौफनाक था। अब हमारे साथ बच्चों की जो मकतूल थे उनकी दादी भी मौजूद है। इनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, किस तरह से इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा। माँ जी की होया दसो, तुसी ते तुहाडे ते गोदियां 'च खड़ाए होने ने बच्चे तुसी। होए होए होए, मेरी मेहनत जिंदगी की, हाँ जिंदगी की मेहनत ही मेरी, पूरी जिंदगी की। आप दादी के तो बड़े लाडले होते हैं पोते। बहुत लाडले थे मेरे, बहुत ही लाडले थे। दूसरी तो एक दुकान में हम बैठे थे, दूसरी दुकान में वो काम कर रहे थे, एक दूध गर्म कर रहा था, एक बर्तन धो रहा था। हाँ। और 9:45 का टाइम था। जालिम आया है, आज था मुझे पता नहीं लगा, हमें पता नहीं लगा। हाँ। जब उसने पैर मारे ने 2 फट फट भाग के गए तो इतने में भाग गया। एक उसके साथ मोटरसाइकिल लेके स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, वो बैठ के पीछे भाग गया। मेरे बच्चे मैंने देखे तो बच्चे मेरे खत्म कर दिए उसने। हाय। अच्छा, जब ये मामला सारा शुरू हुआ बच्ची वाला, तो आपकी तो बात हुई होगी बच्ची से, क्या कहती थी कि वो कितने जालिम थे और वो उसके जो है वो वर्गलाने पे, उसके डराने पे, उसके धमकाने में वो आ गई। हाँ, मेरे बच्चे मासूम थे, बच्ची भी छोटी उम्र की थी, बच्चे भी। ये जालिम बहुत अदाउद उम्र बड़ा था मेरे बच्चों से। हाँ। इसने हाथों पे ले लिया बच्चों को। हाँ। इसने, और फिर पीछे धमका के कामयाब हो गया। हाँ। ऐसे किया। ऐसे किया। तो जब बच्चे कत्ल हुए तो आपने वहाँ पे सारा ये मंजर खुद देखा? हाँ, खुद देखा है मैंने। बड़े बच्चे का भी जहाँ पैर लगा है वो मैंने उससे कहा वो यहाँ लगा, इतने में मुझे पता भी नहीं, छोटा मेरा खुले में पड़ा, वो गिर गया, उसका सिर भी फट गया, उसकी ये गर्दन भी टूट गई। हाय 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 हाय, ये मंजर बहुत खौफनाक था जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है। हाँ। माँ जी, फिर कुछ पकड़ा भी गया जिसने कत्ल किया, वो एक मुलजिम जो था उसको पकड़ भी लिया। हाँ। उसके नाम का पता है आपको? हाँ। क्या नाम है उसका? फाहिद। है? फाहिद। 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 फाहिद गुजर। फाहिद गुजर। फाहिद गुजर। तो फाहिद गुजर तो पकड़ा गया, दूसरा भी नहीं पकड़ा गया है? दूसरा नहीं पकड़ा गया अभी। फाहिद गुजर जो था वो आपके बच्चों को इस तरह से डराता था, धमकाता था, बच्ची को भी डराता था, धमकाता था। कभी उसने आपको नहीं बताया बच्ची ने? नहीं, बच्चों को ही बताया बच्ची ने। अच्छा। वो बच्ची डरती सी हमसे, ऐसी नहीं थी हमारी बच्ची। हाँ। वो बहुत डरती सी, भी झगड़ा हो जाए कोई क्या कहेगा ऐसी बात। लेकिन फिर भी उसने तो वही कर दिया जिससे वो डरती फिर थी। वही हो गया, वही हो गया। तो कुछ कहना चाहती हैं इंसाफ के लिए किसी को? मैं वजीर आला पंजाब को कोई क्या इंसाफ होना चाहिए? मेरा यही इंसाफ होना चाहिए, जैसे मेरे बेटे बच्चे खत्म हुए, पोते, ऐसे ही गुजर खत्म हो जाए। हाँ। मुझे इंसाफ मिले, दुश्मनों का खात्मा हो जाए, दुश्मनों का खात्मा हो जाए, ये चाहती हूँ मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिल जाए। पोतियां हैं, पोते नहीं रहे? पोते नहीं रहे, वही 2 थे बस, वही 2 ही थे मेरे बच्चे, जवान बच्चे मेरे हीरे। उनका इंसाफ मिलना चाहिए। गुजर सारे भी मर जाए तो मेरा फिर भी मुझे सबर दिया है, लेकिन इंसाफ ऐसा तो हो जो मेरों के बराबर तो मारे उनको। अच्छा जी, ये बताएं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब कहाँ तक पहुँची है? पुलिस ने आपको शनाख्त आपने कर लिया है और जो आला कत्ल था वो बरामद हो गया है, और इनके पास लाइसेंस वाला असला तो नहीं होगा? आप बता दें क्या करता था? गैंग वूंग बनाया हुआ था? हाँ जी। क्या करते थे गैंग बना के? आवारागर्दी करता था जी, ये गैंग बनाया हुआ इसमें था। पहले भी पर्चे कोई हैं? हाँ जी, सुना है कि 2 पर्चे डकैती के पहले भी थे इसके पास। डकैती के पर्चे थे? अच्छा, ये आपको पहले नहीं पता होगा? नहीं। अब सुना है।
अच्छा, आप पता चला है? हाँ जी। डकैतियाँ भी आप करता सुनो, था? हाँ जी, ये गैंग था इनका लड़कों का, सारे गैंग का सरबराह था ये। हाँ। और आवारा गर्द था पूरा। अच्छा। बस ये आवारा गर्दों के वो धोखे से बच्चों के, उसका बच्चों का भी बेली बन गया, बेली बन के बच्चों को धमकाया। फिर बच्ची में मिल गई है, बच्ची को धमकाता रहा, धमका के बच्चों को यही धमकियाँ बच्ची को देता था, मैं तेरे दोनों भाइयों को मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। वो बेचारी डरती हुई इसकी बात भी मान ली है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे जब पता चला, जब ये कोर्ट मैरिज का मसला हो गया है, तो जैसे ही फिर मुझे पता चला, मैंने बरादरी तौर पे बच्ची को वापस लेके आया हूँ। बच्ची को वापस लाने के बाद मैंने अदालत लेके गया हूँ बच्ची को। बच्ची ने खुला दायर करके खुला ले ली है। ये प्रोसीजर तकरीबन चलता रहा 20-25 दिन। सर बस फिर क्या हुआ, फिर इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। कभी चाचा इसका धमकियाँ फ़ोन करके कर रहा है, कभी बाप कर रहा है, कभी मामू इनके कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, कभी किसी से फ़ोन करवा रहा है, कभी किसी बासर बंदे से फ़ोन करवा रहा है। माँ चाचा ने तो यहाँ तक कहा था कि जी अगर ना तुमने बच्ची वापस दी तो हम या तो इस बच्ची को मार दो, नहीं तो हमने आपके पास छोड़नी नहीं बच्ची, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि जो इस हद तक जा सकते हैं कि आपके 2 बच्चे मार दिए और अब उनका बेटा गिरफ्तार हो गया, तो अब तो कोई आपको धमकियाँ, कोई डराया धमकाया, कोई पैगाम ऐसा तो नहीं मिल रहा? सर अभी तक पैगाम तो नहीं दिया, लेकिन ये कि मुझे ख़तरा है अब भी, क्योंकि मैं अब अकेला इस केस का मुद्दई भी हूँ और मेरे पीछे वो बच्चियाँ ही हैं, बेटा भी कोई नहीं रहा। ठीक है, अब ये है कि मुझे बस यही अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तो मुझे अपने जान का भी ख़तरा है। और ये इनके जो ख़ानदान के दीगर लोग हैं जो आपको डराते धमकाते थे, इनके ऊपर भी पहले मुकदमात हैं ऐसे ही? उनका नहीं पता सर, ये अब लेकिन इस लड़के के ऊपर जो फ़ाहद था, इसके ऊपर मुकदमात हैं? हाँ जी। ठीक है। जान का ख़तरा भी है जी, जो मुल्ज़मान है उनकी जानिब से धमकियां जो है वो पहले मिलती थी जब कुछ नहीं हुआ था। यकीनन अब कत्ल की वारदातें, 2 कत्ल हुए, दोहरा कत्ल की वारदात करता है मुलज़िम, और अब किस तरह से उसके घर वाले इस चीज़ को लेते हैं, जान का तहफ़्फ़ुज़ भी मुकदमे का मुद्दई जाता है, क्योंकि जब मुकदमे का मुद्दई किसी केस की पैरवी करता है तो उसको सबसे ज़्यादा दुश्मनों से, उस मुल्ज़िमों के ख़ानदान से, उनके लवाहकीन के लोगों से जो है सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। जिसके 2 जवान साल बेटे चले गए, उसके दुख का तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जिनके बेटे चले गए, इस जवानी में उनको जो है वो लहद में उतारा इस बाप ने, तो उसका दुख तो यही बता सकते हैं और कोई इसको महसूस शायद नहीं कर सकता हो। लेकिन जो वारदात हुई उसके बाद अब पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है, पुलिस ने कातिल को गिरफ़्तार भी कर लिया है। इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बताते हैं कि कैसी वारदात थी, क्या हुआ था और मुलज़िम कैसे पकड़े गए हैं, पहले वो सुन लीजिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग थाना हंजरवाल ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो भी एक दोहरा कत्ल था, डबल मर्डर केस था, जिसे बहुत ही कम वक्त में मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़िम ने अपने बरादर निस्बती जो हैं उनको कत्ल किया था घरेलू नाचाकी की वजह से, और बहुत ही कम वक्त में इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मरकज़ी मुलज़िम जो है केस का उसको गिरफ़्तार किया। इन्वेस्टिगेशन विंग को हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं और ये जदीद दौर का तकाज़ा है कि इन्वेस्टिगेशन को हम बेहतर बनाएं, और हमारी कामयाबी का एक बहुत अहम पैरामीटर वो कन्विक्शन रेट है कि हम उस कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मुलज़िमान अगर बेलों पे आ भी जाते हैं तो उसमें जहाँ पे हमारी अगर कोई नेग्लिजेंसी होती है हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें, और अभी जितने उसके लिए इक़दाम हम कर सकते हैं। अभी मुलज़िमान को हम इससे पहले इतनी तादाद में शनाख्त परेड के लिए नहीं भेजे जाते थे, क्योंकि शनाख्त परेड एक ऐसा मेकनिज़म है जिससे ये यकीनी बना सकते हैं हम कि हमने जो मुलज़िम गिरफ़्तार किया है वो हमारा वही असल मुलज़िम है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल हैं जी मोहसिन साहब हमारे साथ। जो डबल मर्डर होता है, जो कत्ल की 2 वारदातें होती हैं, एक ही जगह पे 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। किस तरह से कत्ल की वारदात हुई
मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुए और वजह अनात क्या थी, कत्ल करने की वजह क्या थी, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल जो है मोहसिन साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि जो कत्ल की वारदात हुई, पहले तो वो कुआ बताइए कैसे हुआ, वाक़या कैसे हुआ, उसकी तफसील बताइए। जी, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, ये डबल मर्डर का केस है। इसमें जो मेन मुलज़िम है फ़ाहद, जिसने 2 भाइयों को कत्ल किया है, सगे भाइयों को, उसकी हमशीरा के साथ पसंद की मैरिज की थी वक़ूआ से 3 माह कबल। ठीक है। वक़ूआ से 3 माह कबल जब उसने शादी की तो ये इसने 1 मंथ उस बच्ची को अपने साथ रखा था शादी के बाद। ठीक है। उसके बाद इनकी रजामंदी के साथ वापसी हो गई थी बच्ची की, के बाद ज़ाब्ता इसको रवाना किया जाएगा। लेकिन जब बच्ची वालिदैन के पास वापस आई तो फिर बच्ची ने एक तरफा खुला ले लिया। ठीक है। लड़के से खुला ले लिया, फिर उसकी मर्ज़ी नहीं थी शामिल कि मैं लड़के के साथ वापस जाऊं। जब लड़के को उस खुला का इल्म हुआ तो इस रंजिश में, इस गुस्से में आके उसने अपने दोनों, जो हकीकत में उसके पहले दोस्त भी थे, उन दोनों को आके दुकान पे उसकी कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा, जो कातिल है, जो मरकज़ी मुलजिम है, वो गिरफ़्तार भी हो गया है। ये पहले दोस्त था इस ख़ानदान का, जो मरने वाले दोनों भाई थे उनका भी दोस्त था ये? जी, ये मुजम्मल और मुदस्सर 2 भाई थे। ठीक है। लड़की के, ये दोनों के साथ इसकी दोस्ती थी, इसका फैमिली टर्म्स भी थे, आना जाना भी था इसमें। पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये लड़की घर से जाके पसंद की शादी करती है तो FIR भी एक दर्ज करवाई जाती है अगवा की। जी। तो उस पर्चे का क्या बनता है, उसकी FIR का क्या बनता है? वो स्टेटमेंट दे देती है लड़के के हक़ में? बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने अगवा की FIR भी करवाई थी, लेकिन बाद में जब इनकी पंचायत हुई तो वो FIR इन्होंने खारिज करवा दी। FIR खारिज करवा दी। फिर उसके बाद इनका जो पंचायती फैसला होता है कि वो लड़की को वापस ले आते हैं और कुछ दिन बाद दोबारा भेजने का वादा करते हैं। जी, ऐसा ही। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आई। जी। फिर क्या हुआ कि वापस क्यों नहीं भेजते हैं? कोई इज़्ज़त का मामला था, कोई गैरत का मामला था इसमें? जी, जब वापसी की बात हुई है तो फिर इन्होंने दोनों ख़ानदानों को मिलाने के लिए लड़की वालों ने शर्त रखी कि हमें आप लोग भी अपनी बच्ची का रिश्ता दें, ताकि हम दोनों को ख़ानदानों का वट्टा सट्टा जिसको कहा जाता है। ठीक है। इस चीज़ से लड़के वालों ने इनकार किया। ठीक है। उनके जी ये नहीं हो सकता, तो जो हमारी बात हो चुकी है वो बच्ची हमारे हवाले करें, जिसकी वजह से फिर बच्ची ने भी वालिदैन का साथ दिया और खुला ले लिया कोर्ट। खुला ले लिया। अच्छा, 2 जो भाई थे वो कितनी उम्रें थी, पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, क्या थे? नहीं, 2 भाई, वो दोनों भाई अपनी दुकान पे, उनकी दूध दही की दुकान है, वहाँ पे काम करते थे और 20 और 21 साल उम्र थी। 20 से 21 साल। एक की 19 साल और एक की 21 साल। अच्छा, 21 साल। तो लड़की की कितनी उम्र है? लड़की की उम्र 18 साल है। 18 साल है। अच्छा, जो मुकदमे का मुद्दई है वो कहता है कि जो मारने वाला है, जो कातिल है, मुलजिम है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके ऊपर डकैती के पर्चे हैं और उनके जानिब से उनको अभी भी थ्रेट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि अगर केस की पैरवी करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की कुछ चीज़ आई सामने? नहीं, ऐसा हमारी तफ्तीश में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई और ना ही वो सबका रिकॉर्ड याफ्ता सामने आया है। वो स्टूडेंट था, कुछ 5-6 महीने पहले उसने तालीम छोड़ी है, वहाँ किसी शॉप पे जॉब करने लग पड़ा था। ये जब बच्ची का मामला बना है और निकाह वाला मामला बना है, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता वो नहीं है। ठीक है। उसका कोई पहला मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। मोहसिन साहब, मुलजिम गिरफ्तार कैसे होता है? दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया या एक ही हुआ इसमें? दूसरा मुलजिम पहले नामालूम था, किसी को ट्रेस नहीं था हो रहा। ठीक है। लेकिन फिर हमने जब इसके दोस्तों से पता किया, इसके दोस्तों से पूछ पड़ताल की, उनसे तफ्तीश की, हमें एक जगह पे क्लू मिला कि ये शायद अबू बकर है। लेकिन जब हमने ये असल मुलज़म एक्यूज़ को पकड़ा तो फिर इसने एग्जैक्ट बताया कि ये मेरा दोस्त अबू बकर है, जो वांटोन का रहायशी है, वो मेरे साथ गया था। वो साथ गया था। तो इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? क्या कुछ माना? क्यों इसने क्या अब तक बयान दिया कि कत्ल क्यों किए? और आला कत्ल जो था, पिस्टल था, वो इसके पास लाइसेंसी था या नाजायज़ पिस्टल था? क्या बताया इसने? जी, इसने इसको जब हमने गिरफ़्तार किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस और मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से और अपनी इंफॉर्मेशन के बलबूते पे इसको जब हमने ट्रेस किया और गिरफ़्तार किया, तो इसने फिर ये एतराफ़ जुर्म किया है कि ये वाकई मैंने इस वजह से किया है, ये चीज़ की मुझे रंजिश थी, इस बिना पे मैंने कत्ल इन दोनों को किया है। तो अभी ये मुलज़िम रिमांड पे, हम इंशाअल्लाह उसे आला कत्ल जल्द बरामद करेंगे। ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल, जिन्होंने इस कत्ल की असल इन्वेस्टिगेशन जो है, किस तरह से मुलजिम को पकड़ा और मुलजिम ने क्या एतराफ़ी बयान पुलिस की हिरासत में दिया, ये सब कुछ इन्होंने बताया। और दूसरी जानिब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुकदमे के मुद्दई की जानिब से कि मुलजमान जो हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, कोई गैंग चलाते थे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इस बात से इनकारी है। उनका कहना है कि इस तरह की रिकॉर्ड याफ्ता होने की कोई तस्दीक नहीं है
और ना ही किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो सामने आ सका। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी इन लॉज के साथ रिलेशनशिप होगा, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो, चाहे आप एक बहू की बात करें या दामाद की बात करें, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और वो क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व नहीं होते। पहली बात यह है कि जब भी हम किसी दोस्त के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं या दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन लॉज के साथ 3 लोगों का रिलेशनशिप होता है। एक मर्द का हो गया, एक बीवी का हो गया और एक उसकी अम्मी है या अब्बू हैं या उसके बहन भाई हैं। तो ये जब 3 लोगों का रिलेशनशिप होगा तो वो हर सूरत हाल में कॉम्प्लिकेटेड होगा। मसला वहाँ पे आता है जब हम अपनी पहले से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हम लड़की सोचेगी कि मैं जाते ही बस इस घर में इनकी बेटी की तरह बन जाऊँगी, लड़का सोचेगा कि ये जो है मेरी अम्मी अब्बू के साथ वैसे ही रहेगी जैसे मेरी बहन भाई रहते हैं। तो ये जो तवक्कुआत हैं इनकी ज़्यादा होने की वजह से जब आप रियलिटी देखते हैं कि उस तरह के हालात नहीं हैं जो आपने सोचे थे, वहाँ पे मसाइल आते हैं क्योंकि आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तीसरी बात ये है कि जब भी एक नया इंसान, नया फ़र्द आपकी फ़ैमिली में आएगा तो पहले से जो एक आपकी बॉन्डिंग बनी हुई है एक फ़ैमिली की या एक तरीक़ाकार है कि क्या काम किस तरीके से होगा, वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एडजस्टमेंट वाला पीरियड होता है। अब जब एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती फ़ैमिली की उस एक नए इंसान के साथ या उस नए इंसान की उस फ़ैमिली के साथ, वहाँ पे मसाइल आते हैं। और जैसे कि मैंने बात की कि क्योंकि वो 3 लोगों का रिलेशनशिप है, एक मर्द का, उसकी बीवी का और फिर सारे उसके घर वालों का उस बीवी के साथ, उस रिलेशनशिप में मर्द का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। जो हस्बैंड है उसे अपनी बीवी का भी ख्याल रखना है और उसे अपनी फ़ैमिली का भी ख्याल रखना है। तो पहले तो अपनी तवक्कुआत को बिल्कुल नीचे कर देना ज़रूरी है कि जैसे आप सोच रहे हैं आइडियल उस तरीके से शायद माहौल ना बने, शायद उस तरीके के ताल्लुकात ना बने जैसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से मर्द के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आता है और मैंने कुछ केसेस भी ऐसे देखे हैं जिसमें मर्द ये कंप्लेन करते हैं कि हम इन मसाइल की वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं और वो इसीलिए हो रहा होता है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले से ही तवक्कुआत आपने ऐसी बना ली थी कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। अब वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही। तो उस चीज़ में जो है सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक रहें। रियलिस्टिक आपको इसलिए रहना है क्योंकि आप एक जब फैमिली में आए हैं, आप अपने हस्बैंड के माँ बाप की बेटी नहीं बन जाएंगी और माँ बाप को भी ये सोचना है कि वो भी उस तरीके से आपके जो है खूनी रिश्ता नहीं है जैसे आप चाहते हैं, उस तरीके से नहीं होगा। हमारा माशरा जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटों को पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी तरक्की करें, पढ़ लिख के नौकरी करें या अपना कारोबार करें। जब हम ये सब चीज़ें अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं, हम उनको बाहर भेज रहे हैं, हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो फिर हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो हमारे ही तरीके से चलेंगे या हमारे बेटे हमारे ही तरीके से, हमारे ही ख्यालात से हर चीज़ में चलेंगे। क्योंकि जो भी 18 साल से उम्र जिनकी भी ऊपर हो जाती है, वो एक एडल्ट होते हैं। वो हर फैसला अपना खुद ले सकते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशन का हो कि उन्होंने क्या पढ़ना है, क्या नौकरी करनी है। जब हम इन फ़ैसलों के लिए अपने बच्चों को ट्रस्ट करते हैं तो फिर हम शादी के लिए ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? पहले तो ये समझने की बात है। ज़्यादा मसला वहाँ आता है जब ईगो पे बात आ जाती है कि हमारी बेटी ने किसी को पसंद कैसे किया। ज़्यादातर जिन माँ बाप के मुँह से मैं ये इस तरह के मसाइल सुनती हूँ, वो यही कह रहे होते हैं कि ये ख़राब हो गई है या इसने कैसे किसी को पसंद कर लिया। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये उसका हक़ है। अगर आप खुद भी किसी आदमी को उसके लिए पसंद करेंगे तो भी पसंदीदगी होना शादी से पहले ज़रूरी है। आपको उस आदमी के बारे में भी तब भी तो उसको बताना पड़ेगा या उसको मिलवाना पड़ेगा। बग़ैर पसंदीदगी के तो कोई शादी नहीं चल सकती। तो ईगो पे जो हम ले लेते हैं चीज़ों को, फिर हम ये नहीं समझते कि हमें भी माशरे के साथ बढ़ना है, हमें भी अपने दिमाग को थोड़ा सा बदलना है। हम अब उस ज़माने में नहीं रह रहे जहाँ पे इन चीज़ों को बुरा समझा जाता था। जिस तरह आपके बच्चे बदल रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आपको खुद के ऊपर भी काम करना है।
तो जब माँ बाप अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रहे, जब वो अपने दिमाग को खोल नहीं रहे हैं, खुल के सोच नहीं रहे हैं, तब वहाँ पे मसले आते हैं कि बच्चे भी ये समझते हैं कि हम अपने माँ बाप को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उन पर एतबार नहीं कर सकते किसी बात को लेके। और फिर जब अचानक से कुछ ऐसा पता चलता है तो फिर वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने कैसे किसी को पसंद कर लिया, या वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि शादी के लिए जिस तरह हमारा लॉ कहता है कि 18 साल से उम्र कि कोई भी इंसान, लड़का हो लड़की हो, वो शादी का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। तो माँ बाप को ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है, हम लोग बदल रहे हैं, हमारे बच्चे बदल रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी बदलना है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि दोहरे कत्ल की वारदात किस तरह से होती है, कैसे दो सगे भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। और वजह नात ऐसी थी जिसमें तमाम ख़ानदान वालों को मालूम होता है कि उनकी बेटी को डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके मुलजिम जो है उससे शादी करता है। जब वो अपने घर आ जाती है, उसका तमाम ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, तो मुलजिम इस गुस्से में इसका बदला लेने के लिए लड़की के दोनों भाइयों को घर की दहलीज पर बनाई गई दुकान में कत्ल कर देता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।